Hello friends, class 10 social science chapter 2 sector of the Indian economy. Economics का ये second chapter friends. Today we learn about the economic activity, different sectors in economic activities. So all the economic activity given an important income to return called the economic activities. यानी कोई भी transaction होता है it's the economic value that is called economic activity. Example, going from a work in a factories, bank, schools, etc. So they are all the transaction are economic activities. That means economical transactions. People are engaged in various activities producing goods and services. So in the different sectors in a daily life, some manufacturing factors, some that mean factories, and some trading sectors, transportations, greengrocer. तो ये जो सारे जो रिटेल शॉप्स ये वगैरह उनके साथ जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं दे आर इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस. ऑल्सो सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Now economic activity can be classified into different sector. So ये हमने पहले एक्सप्लेन किया व्हाट इज द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो यानी कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है कौन से सेक्टर पे बेसिस है. 3 मेन सेक्टर हमारे. ये फर्स्ट पॉइंट है. ये फर्स्ट हमने पहले डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी देखा. नाउ द सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ways. One is the primary, secondary and tertiary sector. So different type of the sector in Indian economy. First we take the primary sector. Goods which are produced by exploiting natural resources comes under the category are called the primary sectors. Just like agriculture, fishery, mining. तो ये जो पोल्ट्री फार्मिंग, तो ये सारी जो एक्टिविटीज है वो प्राइमरी एक्टिविटी के बेस अंडर आएगी. नाउ सेकेंड टर्शियरी, secondary sector. In the secondary sector, the transformation of one goods into another comes under the categories of the secondary sectors. For example, transformation of sugarcane into sugar or jaggery, manufacturing of the goods, trading, etc. They are including in the secondary sector. Now, third sector, services and transportations, they are called and included in the tertiary sector. All production units producing services which help in the development of the primary and secondary sectors come under the category of a tertiary sector. For example, doctors, teachers, transportation, lawyer, banking, बीमा पॉलिसीज, जो यानी इंश्योरेंस, ये जो सारी चीजें हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है दे आर कॉल्ड दे अंडर द टर्शियरी सेक्टर. Different type of the economy through are the group into 3 different category are very much interdependent: banking, communication and insurance. तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसमें 3 मेन कैटेगरीज है. एक तो बैंकिंग सेक्टर, सो डेली और वी ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक्स. ओके. सेकेंडली कम्युनिकेशन, transportation, also insurance. They are using a daily in our life. The various production activity in the primary, secondary and tertiary sector produce a large number of the goods and services and employ a large number of the peoples. So large number of the peoples are engaged in the different type of the sector. अलग अलग सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग एंगेज होते हैं. दैट मीन यानी कि अलग अलग बेसिस पे, जैसे फैक्ट्री में एज ए लेबर वर्क करते हैं, बैंकिंग में जो भी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो भी पीपल वर्क करते हैं, सो दे ऑल आर the employees and they are the large number engaged in a different sector. In our country, mainly
डिपेंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हम देखते हैं कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, तो उसमें ज़्यादातर हमारे 60 या 65% पीपल दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चर फील्ड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, next, the value of the final good and services produced the each sector during the particular year provide the total production of the sector for the year। यानी जो भी फाइनल गुड्स होता है, यानी कि जो हमारा जो जीडीपी और उसके बाद जो फिनिश्ड गुड होता है और उसकी जो फाइनल वैल्यूज होती है प्रोडक्शन की ऑफ द ईयर ऑफ द सेक्टर, एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स गिव्स what is called the gross domestic product, that means GDP. We classify as the form of GDP of the country contribute the 3/4 of the produce. In the year of 2003, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in the India, replacing the primary sectors। यानी पहले जो प्राइमरी सेक्टर they are large emerged in the production sector, but in 2003 large in the largest producing sector is a tertiary sector in 2003। Now next point, tertiary sector become a very important in India to several reasons। तो किस तरह टर्शियरी सेक्टर जो हमारे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी सम रीजंस हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट रीजन, द गवर्नमेंट हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजंस ऑफ द सर्विसेज सच एज द हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। Second reason, secondary agriculture and industry has developed। Third reason, an income level rise in big cities, certain in the section of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, etc. Fourth reason is over the past decade are so certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential। हमारे लिए जो ये टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस हो गया है, हमारे लिए नेसेसरी है। डेली लाइफ जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो अब आज आप देखते हो सारी चीज मोबाइल से, लैपटॉप मोबाइल से या तो लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेशन बढ़ गया है। यानी जो भी ऑर्डर भी प्लेस किए जाते हैं तो भी मेल के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं। सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया, द एम्प्लॉय हैव मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ द वेरी लार्ज नंबर services sector in India, the employee have many different kind of the people like a highly skilled and educated workers on one side and a very large number of the workers engaged in the services such as the small shopkeepers, repair person, transport person, etc. So in the service sectors, the different and the different bases a different skillful workers are depend, यानी कि हर एक जो भी डिपेंड ऑन अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग और उसकी स्किल के थ्रू दे आर एंगेज इन अ डिफरेंट सर्विसेज। ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कवर दोज एंटरप्राइजेज दैट आर registered by the government have to follow its rules and regulation। Therefore, people have job security, unorganized sector covers। Organized sector के अंदर people की job की security होती है, but it is a reverse in unorganized sector। Small and scattered unit which are largely outside
the control or the government employee is not secure in unorganized sector, यानी unorganized sector के अंदर so people की security नहीं होती, job security नहीं होती, यानी उसको work मिलेगा या नहीं उसकी भी कोई भी गारंटी नहीं होती. That is called unorganized sector. यानी कि लेबर जो वर्क करता है फैक्ट्री के अंदर या तो कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वर्कर जो लेबरिंग वर्क करते हैं, सो दे आर नॉट श्योरिटी कि उसको दूसरे दिन का वेजेस उसको मिलेगा या नहीं, यानी श्योर नहीं होता. दैट इज अ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. किस तरह ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री के लिए इंक्रीज की जाए. अंडर एम्प्लॉयमेंट और the disguised unemployment means more people engaged in a job than needed. यानी कि disguised unemployment क्या बोला जाता है कि जिस सेक्टर में जितने पीपल की जरूरत है उससे ज्यादा they are engaged in these employment. यानी कि एक जैसे फार्म होता है तो फार्म में अगर 5 मजदूर होते हैं और उसकी जगह हम 10 मजदूर लगा देते हैं, पर बाकी ये जो एक्स्ट्रा 5 जो लेबर है मजदूर है उनका जो प्रोडक्शन में वैल्यू 0 है. अगर 5 नहीं होते तो भी उसका फार्म प्रोडक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता. दैट मीन दे आर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अननेसेसरी उनको उस काम के लिए एंगेज किया जाता है. More employment can be created in a country like India by building more dams and canals to provide water to the farmers, by providing a cheap credit facility and crops insurance, by spending more money on the transport and storage, technical trainings, by providing a cheap bank loan at the cheaper interest. यानी कि हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे स्किलफुल वर्कर को ट्रेनिंग भी, स्किलफुल बनाने के लिए वर्कर को ट्रेनिंग भी जाती है. फार्मिंग में मॉडर्न फार्मिंग के लिए उनको भी एजुकेशन दिया जाता है. ऑल्सो चीप क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द बैंक फैसिलिटीज, बैंक के थ्रू या तो गवर्नमेंट के थ्रू फार्मर को क्रॉप्स ग्रोइंग करने के लिए उनको चीप रेट से लोन दिया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी चीप रेट से प्रोवाइड की जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो. Study conducted by the Planning Commission of India estimate nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. यानी कि प्लानिंग कमीशन के थ्रू ये डिक्लेयर किया गया है कि nearly 20 lakh jobs create in the education sector. एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जॉब्स क्रिएट की गई है. In our country, the central government made a law implementing the right to work in 200 districts, and the next ended to additional 130 districts. It is called a National Rural Employment Guarantee Act. यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंडर यानी कि NREGA 2005 एक्ट लागू 2005 में किया गया और उसके अंडर 200 डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद नेक्स्ट 130 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया कि जहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट की श्योरिटी कम से कम उनको ईयर के अंदर उनको 200 डेज की एम्प्लॉयमेंट मिले. उस तरह गवर्नमेंट ने या तो जो भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि भाई 100 डेज है तो 100 डेज, 200 डेज है तो 200 डेज, तो ये गवर्नमेंट की श्योरिटी इतने दिन उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी. दैट इज द रूरल एम्प्लॉयमेंट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005. Next point, GDP is the sum of the money value of the final goods and services produced in the each sector during the particular year within a domestic territory of a country. Gross domestic product है वो उसकी जो मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स के साथ यानी कि कंप्लीट रेडी गुड्स, एंड ऑल्सो
प्रोवाइड द सर्विसेज इन द ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर के अंदर उसकी सर्विसेज प्रोवाइड होगी। तो ये सारे इंक्लूड करके ये टर्शियरी सेक्टर के अंदर ये डोमेस्टिक जो सर्विसेज है उसके साथ हमारे कंट्री के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये और उसके पीछे जो भी एम्प्लॉयमेंट एंगेज होंगे, सो इस तरह हमारे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग NRGA एक्ट 2005, यानी कि 2005 में NRGA एक्ट लागू किया गया। सो टू गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल हु लिव रूरल एरियाज, टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, यानी रूरल एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करने के लिए रूरल एरियाज के अंदर गवर्नमेंट ने ये लॉ इम्प्लीमेंट किया। सेकंड, टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल, टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क, यानी हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो इस तरह, टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क, और यानी कि उनको उनका जो वर्क का राइट मिले, यानी उसको उनको पर्टिकुलरली फिक्स डेज की जॉब मिले। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ द सेक्टर, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, अब हमारे जो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, there are two type of the sector, one is the organized and second is the unorganized sector, yani workers in the organized sector enjoy security of employment and they are expected to work only a fixed number of hours, यानी उनका जॉब सिक्योरिटी वाला होता है, मीन्स उनको सिक्योर है कि उनको पर्टिकुलरली फिक्स आवर्स की जॉब मिलेगी, दैट इज अ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। The unorganized sector is characterized by a small and scattered unit which are largely outside the control of the government, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, यानी जॉब here are low paid or often not regularly, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंडर में गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देती, यानी जहाँ पे भी जो भी प्राइवेट स्केल यानी प्राइवेट जो जॉब्स होती है उसके अंदर उनको लो वेज की पेड मिलता है, एंड अदर थिंग नॉट अ रेगुलर जॉब, यानी कि पर्टिकुलरली उनको एवरीडे जॉब नहीं होते हैं, ऑफनली और रेगुलरली जॉब, नॉट रेगुलरली जॉब्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर कोई भी उसकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, दैट मीन परमानेंट जॉब नहीं होती। So in urban areas, unorganized sector comprise mainly of worker in a small scale industries, casual work in the construction, trades and transport। तो ये जो सारे सेक्टर्स है तो वहाँ पे इनकी एज ए लेबर वर्कर के फॉर्म में दे आर वर्क इन द डिफरेंट सेक्टर्स, कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी लेबर वर्क करते हैं तो दैट मीन नॉट डेली वर्क दे गेट, यानी हर एक दिन का उनको कंस्ट्रक्शन साइट पे उनको रेगुलरली वर्क मिलेगा ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। सो इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब्स आर नॉट सिक्योर, वर्कर्स आर नॉट पेड फेयर वेजेस एंड अर्निंग आर लो, आर एक्सप्लॉइटेड, thus there is a need to protect and support the workers, यानी यहाँ पे उनको सपोर्ट की जरूरत है, उनके प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो इसीलिए लेबर एक्ट भी बाद में हमारी गवर्नमेंट ने फॉर्म किए हैं। सो इन अवर कंट्री मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नाउ लास्ट पॉइंट हमारा हम डिस्कस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप economic activity can be classified into
sectors. One is the public sector and private sector. Public sector and private sector. In the public sector, ownership of assets or delivery of the services is in the hand of the private individual or companies. Example, टाटा एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये जो प्राइवेट बेसिस पे है, पब्लिक बेसिस पे आपको मालूम है सेल है, बेल है, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये जो पब्लिक सेक्टर है, ऑल्सो HMT वो भी एक पब्लिक सेक्टर है। यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो HMT का फुल फॉर्म है। तो ये जो सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर है। मारुति उद्योग जैसे इट इज अ जॉइंट सेक्टर। तो यानी कि डिफरेंट सेक्टर के हिसाब से है, हम यहाँ पे डिस्कस यहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को डिस्कस करेंगे। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ द एक्टिविटी विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज एक्टिविटीज। यानी कि जो भी आपको गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंडर जो गवर्नमेंट वर्क होता है उसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे रेलवे है दैट इज अ गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये गवर्नमेंट के अंडर में जो जॉब्स क्रिएट किए हैं और वो सिक्योरिटी जॉब्स हैं, सिक्योर जॉब्स हैं। सो इन इंडिया नियरली हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर malnourished and quarter of them are critically ill। तो इंडिया के अंदर आप देखते हो कि नियरली हाफ ऑफ द चिल्ड्रन दे आर फ्रॉम malnutrition, यानी कि उनको पूरे 2 टाइम की जो कैलोरीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, यानी कि अंडर द malnutrition एंड क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली। और उसके जो थर्ड पार्ट्स वाले यानी 1/3% दे आर इन ए क्रिटिकल इल सिचुएशन में जीते हैं। सो ये चिल्ड्रन के अबाउट था कि जो हाफ जो चिल्ड्रंस हैं, जितने भी हमारे बोर्न बेबीज होते हैं उसमें से जो हाफ चिल्ड्रन दे आर अंडर malnutrition एंड 1/3 पार्ट ऑफ दे आर क्रिटिकल इल। गवर्नमेंट नीडेड टू पे अटेंशन और ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैक्ट्रीज फॉर पुअर, फूड एंड न्यूट्रिशन एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान भी किए स्कूल के अंदर भी। आपको मालूम है जो नून का मिल काफ़ी जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आफ्टर मिल भी प्रोवाइड किए जाते हैं दोपहर के, जिसकी वजह से बच्चों को स्टडी के लिए स्कूल में आए और रेगुलर स्टडीज करें और माल न्यूट्रिशन से के अंडर ना रहे। सो रनिंग अ प्रॉपर स्कूल एंड प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ने फिक्स डिसाइड किया है कि अप टू द 14 एज तक, यानी 14 एज के नीचे तक कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसकी वजह से यानी 14 इयर्स के नीचे कोई भी लेबर वर्क नहीं करेगा। दिस एज इज फॉर कंपल्सरी एजुकेशन एज। यानी ये भी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा सा स्टेप लिया है, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में लिटरेट पॉपुलेशन बढ़े। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इंडियन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर फिनिश हुआ। सब्सक्राइब माय चैनल and share more student. Okay, bye friends.